Good morning, student. Good morning, sir. Okay, tell me what we discussed in last lecture on last Wednesday. क्या किया था? किसी को याद है? I think you forgot it. No problem. In last lecture, we have started some one small things, that is the application of differential equations using Fourier series and Laplace transform. Okay, so we are concentrating first on Fourier series, then we go for the Laplace transform. For that we have discussed case 1, case 2, case 3, case 4 for the D2D student, and regular student who already learned this topic in the second semester. Then we started the solution of the wave equation, or for vibrations of a straight elastic string. We start with the one dimensional wave equation. So this is your one dimensional wave equation, and the solution of this one dimensional wave equation is u of xt, that is the deflection in the string. Okay, and for that the boundary conditions are u of 0t is equal to 0 and u of lt is equal to 0, and the initial conditions are u of x0 is equal to f of x and del u by del t at t is equal to 0 g of x. We have derived the solution up to the boundary conditions. Yes or no, everybody? Yes, sir. So you can see here I write down everything in the green board. So k is equal to 0, k greater than 0, k less than 0. Then we have the three possibility of the solution. But first two are the non-realistic. So we concentrate on the third solution. So we complete with the physical solution, that is the u of xt is equal to this one. And then we replace x is equal to 0, then c1 is equal to 0 we will get, and if x is equal to L, then we find out p is equal to n pi by L, and we stop here. Okay, yes or no, everybody? Yes, sir. Okay, now I take this is small a n and b n. Okay, so यहाँ पे मैं small a n and b n ले लेता हूँ ताकि हमारी Fourier series के साथ आप compare कर पाओ इसीलिए. Okay, simplicity, for simplicity only. So this is your a n, this is your Bn, where C2, C3 An and C2, C4 Bn. Okay, so this is my 7. Now I already used two conditions, u of Lt is equal to 0 and u of 0t is equal to 0. Okay, now I am applying the third condition, that is u of x0 is equal to f of x. So I put t is equal to 0 in the last equation जो भी हमको मिला है वो. Okay, so substitute या फिर u of, therefore u of x0 is equal to, means you have to replace t is equal to 0 in the equation number 7. So I have sine n pi x by L, because there is no t in this expression. Then here an cos. Okay, before going to that, yes, I forgot to one thing more. Okay, यहाँ पे देखो, this is your solution 7. Okay, equation number 7 is your solution. But if you put n is equal to 1, then it is correct. Then n is equal to 2, then it is also correct. Then n is equal to 3, then it is correct. Yes or no, everybody? Because we have the n, and n belongs to capital N. Yes or no? सभी n के लिए true है कि Yes, नहीं है? sir. है ना? सो यहाँ पे मैं लिखूंगा u ऑफ एक्स टी, इसको समेशन में लिखना है तब जाके हमारा n रिफ्लेक्ट होगा. सो n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटिव साइन n पाई x बाय l एंड an cos n पाई x, सॉरी n पाई ct, n pi ct divided by L plus Bn sin n pi ct divided by L. Okay, so this is your solution, final solution with the two conditions. Now I substitute here u of x0. So if you go for that, then you have n is equal to 1 to infinity sin n pi x by L into an into cos 0, and the second part is 0 due to the sin 0 is equal to 0. So I put here sin 0 is equal to 0. Yes or no, everybody? Yes, sir.
So n is equal to 1 to infinitive, I have an into sine n pi, oh sorry, what is the problem? Yes, n pi x divided by L. Okay, so this is my an is u of x0, but u of x0 is my f of x, so I write down here f of x is equal to summation n equal to 1 to infinitive an sin n pi x by L. So what is this? कोई मुझे बताएगा ये क्या है? अगर हम फूरियर सीरीज के साथ इसको कंपेयर करें तो व्हाट वी हैव? एनीबॉडी? Which is, you can see, yes, which is a half range sine series, yes or no student? Yes, sir. Why half range? वो भी आपको बता देता हूँ. This is half range because if you focus on our condition, then our length is 0 to L. Okay, 0 to L means क्या हो गया? Half range हो गया कि नहीं? Yes, sir. अंडरस्टैंड? सो दिस इज द हाफ रेंज फूरियर सीरीज. अगर वो 0 to 2L होता तो फुल हो जाता हमारा, तो हम वहां पे लिखते कि विच इज द फूरियर साइन फूरियर सीरीज. ओके, सो यहाँ पे अब मुझे an फाइंड करना है. सो व्हाट इज माय an? an क्या हो जाएगा? हाफ रेंज फूरियर सीरीज में फॉर्मूला क्या था an का? 2/L 0 to L f of x into sin n pi x by L dx. Yes or no? Is it okay? Student, this is my half range sine series. So half range sine series के लिए मेरा an क्या हो जाता था? मीन्स आगे जो भी हो an है यहाँ पे, इसलिए an, वहाँ पे bn होता था. So an is equal to 2/L 0 to L f of x sin n pi x by L dx हो जाएगा. Understand everybody? Yes, sir. ओके, नाउ सेकंड वन. अब यहाँ पे देखो मेरा ये फाइनल हुआ, नंबर 8 वाला फाइनल सॉल्यूशन है. अब मुझे सेकंड कंडीशन मींस लास्ट कंडीशन जो हमारी है वो मैंने 3 कंडीशंस यूज कर लिया. इफ यू सी हियर आई यूज u of 0t is equal to 0, u of lt is equal to 0, u of x0 is equal to f of x. Now I am going to applying this condition, that means del u by del t at t is equal to 0 is equal to g of x. So मुझे 8 नंबर पे जो एक्सप्रेशन मिला है उसका मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू t. yes or no? Yes, sir. है ना? सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 8 विथ रिस्पेक्ट टू t. सो डेल u बाय डेल t इज इक्वल टू क्या मिलेगा? देखो मैं थोड़ा छोटा करता हूँ तो आपको पता चले. यस, समेशन एज इट इज. सो समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटिव एज इट इज. अब विथ रिस्पेक्ट टू t करना है तो देयर इज नो चेंज इन दिस साइन. सो साइन n पाई x बाय l एज इट इज. नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म, दैट मींस an cos का हो जाएगा, क्या होगा? माइनस साइन होगा या प्लस साइन? Minus sign. माइनस साइन n pi ct by L into ब्रैकेट का बाकी, दैट मींस n pi c by L आएगा ना, कांस्टेंट तो आएगा ना मल्टीप्लिकेशन में. यस और नो? Yes, sir. हाँ यस, प्लस bn और साइन का हो जाएगा cos. सो cos n pi ct divided by L into n pi c by L. Okay, so this is my del u by del t. अब मुझे उसमें सब्स्टिट्यूट करना है डेल u बाय डेल t x एंड 0. ओके, दैट मींस t इज इक्वल टू 0 के लिए. तो यहाँ पे देखो इसमें आपको t इज इक्वल टू 0 रिप्लेस करना है. सो समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, हियर आई हैव साइन n पाई x बाय l, देन माइनस n, हियर साइन 0, सो साइन 0 विल बी 0, प्लस bn, so bn cos 0 into n pi c by L. So here we have summation n equal to 1 to infinitive sin n pi x by L into bn
into n pi c by l. Yes or no, everybody? Yes, sir. And this is my given as per the given data. This is my g of x. Okay, so again this is the half range Fourier sine series. Yes or no? Which is Yes, sir. हाफ रेंज, क्योंकि साइन टर्म ही है इसलिए उसको हाफ रेंज साइन सीरीज बोलेंगे. अगर वहां पे कॉस होता तो कॉस बोलते हैं. हाफ रेंज साइन सीरीज. ओके, सो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा ये पूरा जो कांस्टेंट है ना, वो पूरा इक्वल टू हमारी जो फॉर्मूला थी वो हो जाएगा. सो बी एन इंटू एन पाई सी बाय एल इज इक्वल टू 2 बाय एल 0 टू एल. ओके, g ऑफ x आएगा यहाँ पे, g ऑफ x इंटू साइन n pi x by l dx. Now what is my bn? So इसको मूव करो. So 2 by l into l upon n pi c हो जाएगा ये 0 to l g of x sin n pi x by l dx, and therefore my final bn is 2 by n pi c, okay, into 0 to l g of x sin n pi x by l dx. So this is the final solution. Means जो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 8 है ना, उसमें मेरा an मुझे ये मिल जाएगा and bn ये मिल जाएगा. That is my final solution. Okay, understand everybody? Yes, sir. Okay, so equation 8 is फाइनल सॉल्यूशन या फिर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन भी हम बोल सकते हैं उसको. इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. ओके, so you can see here this is the wonderful application of the Fourier series, because to find the solution of this wave equation we have to use the half range sine series. So this is the application of the Fourier series. Okay, everybody understand? Yes, sir. This is very complicated, very lengthy and complicated, but if you go with the step by step, then you will derive the solution. But how we can use the example? In example, how we can use this concept? So you can see there is a second, next is example. Yes, I go for the example. So example तो बहुत ही easy है. यहाँ पे देखो, yes, a string of length L. Okay, this is the example for the वेव इक्वेशन. जब भी स्ट्रिंग आता है तो स्ट्रिंग में क्या होता है, हीट होगा या फिर वेव होगा? स्ट्रिंग में ऑलवेज क्या होता है, वेव होता है. ओके, तो अब स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l इज इक्वल टू पाई, मुझे l बोल दिया है पाई, हैज इट्स एंड्स फिक्स एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू पाई. At time t is equal to 0, the string is given a shape defined by f of x is equal to 50x pi minus x m, and then it is released. Means यहाँ पे देखो हमारा जो u of x0 था ना, वो हमारी कंडीशन में था f of x, बट आपको f of x यहाँ पे दे दिया है. That means 50x pi minus x. Yes or no, everybody? Yes, sir. And यहाँ पे then it is released. It is released, that means g of x जो है मेरा, that means u of del u by del t x0 जो कंडीशन था वो g of x था, वो यहाँ पे 0 हो जाएगा, because we release it, है ना. हम उसको छोड़ देते हैं तो कहीं पर भी उसका ये waves नहीं डेवलप होंगे. That means at that point it will be 0. Okay, so there is your two conditions. Understand everybody what I want to say? Yes, sir. ओके, सो यहाँ पे जैसे ही स्ट्रिंग आता है तो आपको यहाँ पे फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द वेव. ओके, वेव इक्वेशन यहाँ पे लिखना है. दैट मींस द डिफ्लेक्शन ऑफ अ स्ट्रिंग एट एनी टाइम t u of xt is given by the wave equation del square u by del t square is equal to c square del square u by del x square with, वहां पे हमारे पास 4 कंडीशंस था और 4 कंडीशन यहाँ पे आपको स्टेट करना है. फर्स्ट कंडीशन था मेरा u of 0t इज इक्वल टू 0. सेकेंड था मेरा u of lt इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे u of 0t में तो कोई चेंज नहीं, तो देखो फर्स्ट मेरी एज इट इज लिख दिया u of 0t इज इक्वल टू 0. सेकंड u of lt, तो l मुझे दे दिया है यहाँ पे, कितनी लेंथ का है वो, पाई, है ना. सो u of pi t इज इक्वल टू 0.
अंडरस्टैंड फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन एवरीबडी? Yes, sir. u of x जीरो इज इक्वल टू जो भी दिया है वो दैट इज माई f of x, तो वो 50 इंटू एक्स पाई माइनस एक्स है। एंड मैंने जैसे बताया कि रिलीज होने की वजह से वो डेल टी मेरा हो जाएगा, सॉरी u of t मेरा हो जाएगा जीरो हो जाएगा ut। ओके डन। सो ये मेरे पास है। नाउ यू हैव टू मेंशन इक्वेशन नंबर 8। आपको इक्वेशन नंबर 8 यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा, दैट इज द फाइनल सॉल्यूशन। So we know that the solution is given by u of xt is equal to summation n equal to 1 to infinity a n cos n pi ct by l plus b n sin n pi ct by l into sin n pi x by l। देखो वही हमारा इक्वेशन नंबर 8 था। देखो मैंने यहाँ पे साइन पहले लिखा है, उन्होंने इसको पहले लिखा फिर साइन को लिखा, और हमारे में स्मॉल एल है वहां पे उन्होंने कैपिटल एल लिखा है। ओके अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके अब यहाँ पे हमने ए एन एंड बी एन जो फाइंड किए थे ना, वही यहाँ पे आपको मेंशन करना है। ए एन इज इक्वल टू 2 बाय एल 0 टू एल एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाय एल डी एक्स, एंड बी एन इज इक्वल टू 2 अपॉन एन पाई सी 0 टू एल जी ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाय एल डी एक्स। अब इसमें जैसे ही आप जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे तो बी एन तो मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। ओके Yes, sir. है ना? अब बी एन जीरो हुआ तो मुझे सिर्फ ए एन ही फाइंड करके यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में, दैट इज योर डिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग एट एनी टाइम टी हो जाएगा। तो देखो चलो यहाँ पे ए एन फाइंड कर रहे हैं, सो देयरफॉर द इक्वेशन 1 बिकम्स मींस यहाँ पे जैसे ही बी एन जीरो करेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो बाकी का मैंने लिख दिया u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन पाई सी। यहाँ पे देखो यहाँ पे L पाई है तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ मुझे मिलेगा एन सी टी इंटू साइन, यहाँ पर भी पाई पाई कैंसिल होके एन एक्स हो जाएगा। सो इक्वेशन नंबर 2 में एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, एनीबडी? नो डाउट सर। No doubt, sir. अब यहाँ पे मुझे ए एन फाइंड करना है, तो ए एन के लिए मुझे हाफ रेंज साइन सीरीज वाली फॉर्मूला यूज करना है, दैट मींस ए एन इज इक्वल टू 2 बाय एल 0 टू एल एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाय एल डी एक्स। अब उसमें मैं एल की जगह पे पाई एंड एफ ऑफ एक्स जो भी मुझे स्टेटमेंट में दिया था और मैंने यहाँ पे डिफाइन करके लिखा था वही यहाँ पे आपको रिप्लेस करना है, दैट मीन्स 50 इंटू एक्स पाई माइनस एक्स साइन, यहाँ पर भी पाई पाई कैंसिल होके एन एक्स डी एक्स हो जाएगी। ओके अंडरस्टैंड एवरीबडी? Yes, sir. अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे 2 बाई पाई और 50 बाहर ले रहा हूँ, सो मेरे पास मिला 0 टू पाई x इंटू पाई माइनस एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स मिलेगा। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ मैं? यूवी रूल से, यस और नो? Yes, sir. है ना? तो यूवी रूल से इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो, दैट मीन्स पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा पहला, तो मेरा पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, देन इंटीग्रेशन ऑफ साइन दैट विल बी माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन माइनस पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा मेरा पाई माइनस 2x, यहाँ पे माइनस कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, देन प्लस फिर यहाँ पे 0 माइनस 2, सो ये हो जाएगा माइनस 2। ओके देन ये यस, और यहाँ पे माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन क्यूब, जिसे हम करते थे ऐसे ही फूरियर सीरीज में, दिस विल बी माई 0 टू पाई। अब जैसे ही ये स्टेप कंप्लीट करते थे तो व्हाट वी डू नेक्स्ट, वी हैव टू चेक अबाउट दिस साइन टर्म, सो साइन वाला तो 0 हो जाएगा बिकॉज साइन एन पाई 0 साइन 0 0, यस और नो? अंडरस्टैंड? यहां से तो फूरियर सीरीज का एग्जांपल स्टार्ट हो गया। स्टूडेंट इज इट ओके? Yes, sir. ओके सो यहाँ पे 100 बाई पाई, नाउ सब्स्टिट्यूट फर्स्ट पाई, सो पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, तो ये तो फर्स्ट टर्म पूरा 0 हो जाएगा, पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर। ओके फिर यहाँ पे चेक करते हैं, सो माइनस माइनस प्लस 2 कॉस n pi divided by n cube. Now I am applying this 0. So 0 minus 0 ओके ये तो 0 हो जाएगा पूरा। यहाँ पे सेकंड लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इसलिए माइनस 2
सो माइनस माइनस प्लस होके वो 2 हो जाएगा cos 0 डिवाइड बाय n क्यूब. सो आई हैव 100 डिवाइड बाय पाई एंड दिस विल बी ओके 2 भी आएगा मल्टीप्लिकेशन में. सो 2 इंटू मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय पाई. सो दिस विल बी -1 रेज टू n और यहाँ पे -1 and I take n cube outside. So my final answer is 200 divided by n cube pi into -1 raised to n minus 1. Understand everybody? Yes, sir. Okay. अब ये जो 200 वाला जो आंसर मिला वो मैं किस में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा? सिर्फ इक्वेशन नंबर 2 में. इक्वेशन नंबर 2 में जैसे ही सब्स्टिट्यूट करता हूँ दैट इज माय फाइनल आंसर. तो देखो hence the required solution is u of xt is equal to summation n equal to 1 to infinity. देखो this is my an okay जो मुझे मिला हो into cos n pi ct by l. उन्होंने जो लिखा था वही का वही हमारा जो सॉल्यूशन था वो. इसमें यहाँ पे पाई करके पाई पाई कैंसिल भी करना है. ओके यहाँ पे एक स्टेप छूट गया है. सो समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 200 डिवाइड बाय पाई इंटू n क्यूब 1 minus 1 raised to n into cos n ct into sin n x. Okay. So is there any doubt, any question in this example? Anybody? No, sir. No doubt. Okay. So I give you one example in homework. Try for this. Okay. और नहीं मिलता है तो मुझे बताना, मुझे कांटेक्ट करना. आई विल हेल्प यू. ओके. अब सिमिलरली हीट इक्वेशन. तो हीट इक्वेशन क्या है? तो देखो जैसे हमने उसमें डेरिवेशन किया था सेम डेरिवेशन, देयर इज नो चेंज. ओके. सिर्फ यहाँ पे इक्वेशन में चेंज है. तो यहाँ पे देखो डेल यू बाई डेल टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर. ओके ये मेरा हो गया. सो विद बाउंड्री कंडीशन, यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन भी वही है, यू ऑफ जीरो टी इज इक्वल टू यू ऑफ एल टी इज इक्वल टू जीरो. लेकिन यहाँ पे इनिशियल कंडीशन एक ही हो जाएगा. दैट मीन जी ऑफ एक्स वाला पार्ट यहाँ पे नहीं आएगा. तो यहाँ पे यू ऑफ एक्स जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. मीन्स हमको 3 कंडीशन ही सॉल्व करना है. ओके. सो यहाँ पे अगेन आई स्टार्ट विद द यू ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू एक्स एक्स टी टी. मैंने जैसे आगे किया था ऐसे ही. अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, मुझे डेल यू बाई डेल टी चाहिए एंड डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर चाहिए. तो एक्स टी डैश हो जाएगा एक्स डबल डैश टी. जो आगे किया था सेम टू सेम, सिर्फ इक्वेशन में चेंज है तो अकॉर्डिंगली आपको चेंज करना है. यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव है, उसमें सेकंड डेरिवेटिव था, दोनों में. यहाँ पे इसके लिए फर्स्ट है, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर है. तो यहाँ पे उस हिसाब से आपको डिफ्रेंशिएट करना है. सो मुझे लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा x इंटू टी डैश इज इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स डबल डैश टी. सो टी डैश अपॉन सी स्क्वायर टी इज इक्वल टू एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के. अब इसके थ्रो में आपको 3 केसेस लेना है कि k ग्रेटर देन 0, k लेस देन 0 एंड k इक्वल टू 0. सो k ग्रेटर देन 0 के लिए हमने k इज इक्वल टू पी स्क्वायर लिया था कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. सो यहाँ पे देखो फर्स्ट यहाँ पे इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये मेरा इक्वेशन है डी स्क्वायर माइनस के इंटू एक्स इज इक्वल टू 0. तो इसमें से मेरा ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस, अब के की जगह पे पी रखना है, सो पी स्क्वायर. सो एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0. दिस गिव्स मी एम इज इक्वल टू प्लस और माइनस पी. ओके. सो ये मेरा m इज इक्वल टू प्लस और माइनस पी. तो ये दोनों ही दोनों रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं. तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू सी वन ई रेज टू 1 टाइम पी एक्स प्लस सी टू ई रेज टू माइनस पी एक्स, दैट इज योर कैपिटल x. अब सिमिलरली इसके लिए सोचो तो दिस इज योर d माइनस के सी स्क्वायर, ओके, इंटू टी इज इक्वल टू 0. तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा m इज इक्वल टू के सी स्क्वायर. ओके. अब m इज इक्वल टू के सी स्क्वायर मिला, सॉरी, तो m इज इक्वल टू के की जगह पे पी स्क्वायर, सो पी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा. सो m इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर. तो आप t में सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे जो सॉल्यूशन था केसेस थे उसमें से आपका फर्स्ट केसेस है यहाँ पर भी. सो सी थ्री ई रेज टू सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी. सो हमारा u ऑफ एक्स टी मुझे मिल जाएगा, u ऑफ एक्स टी हो जाएगा एक्स एक्स टी टी. सो यहाँ पे आई गॉट इट c1 ई रेज टू पी एक्स प्लस c2 ई रेज टू माइनस पी एक्स इंटू c3 ई रेज टू सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी. यस और नो एवरीबडी? Yes, sir.
ओके, देन सिमिलरली फॉर द k लेस देन 0, k लेस देन 0 के लिए आपको k इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर लेना है। तो आपके ऑक्सिलरी इक्वेशन एक होगा m स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड m इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर पी। ओके, सो यहाँ पे m इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर पी सेकंड में से मिलेगा एंड फर्स्ट में से m इज इक्वल टू प्लस और माइनस आई पी। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आ गया है, सो कैपिटल X इज इक्वल टू C1 cos px प्लस C2 sin px होगा एंड t हो जाएगा आपका C3 इज टू माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी। आप सेकंड सेमेस्टर में करके आए हो और D2D के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। ओके, सेम टू सेम ही है, थोड़ा वेरिएशन है। तो इज इट ओके एवरीबॉडी? अंडरस्टैंड? Yes. Yes. D2D वाले पता चल रहा है कि नहीं? रिप्लाई D2D वाले प्लीज रिप्लाई। यस सर। ओके, सो अब k इज इक्वल टू 0 के लिए देखो, k इज इक्वल टू 0 के लिए क्या करना है मुझे, k की जगह पे 0। तो जैसे ही आप k 0 करेंगे तो दिस इज योर डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज योर डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बी योर x इज इक्वल टू c1 x प्लस c2 एंड दिस गिव्स योर कांस्टेंट t इज इक्वल टू c3, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो इसको कांस्टेंट बोल देना है। So we have the three possibility again. U is equal to C1 e raised to px plus C2 e raised to minus px into C3 e raised to c square p square t. And यहाँ पे U is equal to C1 cos px plus C2 sin px, यहाँ पे हो जाएगा C3 e raised to minus c square p square t। ये t वाला पार्ट है, ये x वाला पार्ट है, और यहाँ पर लास्ट में ये x वाला और ये t वाला। So इसमें से रियलिस्टिक सॉल्यूशन कौन सा है, कौन बताएगा? रियलिस्टिक सॉल्यूशन कौन सा है, एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन? तो यहाँ पे देखो, ये कभी नहीं होगा और ये कभी नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही हमारी हीट होता है तो हीट में भी क्या आता है, हार्मोनिक मोशन जैसा, है ना, तो उसमें भी कॉस एंड साइन होता है। तो इसी की वजह से दिस इज योर रियलिस्टिक सॉल्यूशन। सो यहाँ पे देखो C1 cos px plus C2 sin px C3 e raised to minus c square p square t, that is your appropriate solution या फिर physical solution for the heat equation। किसका सॉल्यूशन है ये, हीट इक्वेशन का। ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके, अब हीट इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हुआ तो फिर से इसी के ऊपर हमारी वो तीन कंडीशन हमको अप्लाई करना है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। चल, कहा गया सॉल्यूशन, यस। सो ये थोड़ा ध्यान में रखो, ये आपका सॉल्यूशन है u इज इक्वल टू C1 cos px। तो यहाँ पे देखते हैं, यस, ग्रीन वन। ओके, देखो यहाँ पे, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द हीट इक्वेशन। तो हीट इक्वेशन के लिए क्या होता है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हीट इक्वेशन, सो हीट इक्वेशन क्या था, डेल u बाय डेल t इज इक्वल टू c स्क्वायर डेल स्क्वायर u बाय डेल x स्क्वायर। दिस इज माय हीट इक्वेशन। और कंडीशन कौन कौन सी थी, सो 0t, यस 0t इज इक्वल टू 0, u of lt is equal to 0 and u of x0 is equal to f of x, that is my conditions। okay, अब इसका सॉल्यूशन, the solution of heat equation is, क्या आया था हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन, कोई बताएगा मुझे? u is equal to C1 cos px plus C2 sin px into C3 e raised to minus c square p square t, that is my final solution। इक्वेशन स्टार बोल देता हूँ। ओके, अब इसमें देखो, अब मुझे फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करना है, u ऑफ 0t इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 रखना है मुझे, बिकॉज दिस इज माई u ऑफ xt। ओके, सो u ऑफ 0t क्या होगा, चलो बताओ, u ऑफ 0t क्या मिलेगा मुझे, बोलो स्टूडेंट, आर यू देयर? Yes, sir. यस सर। क्या होगा, देखो x की जगह पे 0, दैट मीन्स C1 cos 0 प्लस C2 sin 0 इंटू C3
e raised to minus c square p square t. Okay, so I have c1 into पूरा पीछे वाला c3 e raised to minus c square p square t. Okay, अब u of 0 मेरा 0 है, so I put here 0. Okay, वो कंडीशन में ही दिया है. तो अब ये दोनों में से किसी एक को 0 बनना पड़ेगा. Either c1 is equal to 0 और c3 e raised to minus c square p square t is equal to 0. लेकिन ये 0 हुआ तो ये तो हमारा टोटल t of t है ना. अंडरस्टैंड? दिस इज माय t of t और t of t की हेल्प से ये पूरा 0 हुआ तो मेरा फंक्शन u खुद 0 हो जाएगा और वो 0 हो गया तो फिर हमारा कोई ट्रिवियल सॉल्यूशन जैसा मिल जाएगा. सो वी हैव डायरेक्टली c1 is equal to 0. yes or no everybody? जैसे उसमें आर्गुमेंट दिया था, सिमिलर आर्गुमेंट इज हियर. अंडरस्टैंड? Yes, sir. सो फ्रॉम इक्वेशन स्टार, ओके, इक्वेशन स्टार में अगर मैं c1 0 रखता हूं तो क्या बचा वो लिखते हैं. u of xt is equal to c2 sin px, ओके, into c3 e raised to minus c square p square t बचा. ओके, अब ये मुझे मिला है. अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट कौन सी कंडीशन है मेरी, सेकंड कंडीशन कौन सी है, u of lt ना. yes or no? Yes, sir. सो u of lt is equal to 0, तो ये इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ. सो देयरफॉर u of lt मींस x की जगह पे मुझे l रिप्लेस करना है. तो यहाँ पे c2 sin p, यहाँ पे l इंटू c3 e raised to minus c square p square t. और ये भी मुझे 0 ही दिया है, u of lt 0 है. सो यहाँ पे मुझे मिलेगा c2 sin pl c3 e raised to minus c square p square t. तो यहाँ पे किस किस को 0 बनना पड़ेगा, therefore c2 is equal to 0 और sin pl is equal to 0 और c3 e raised to minus c square p square t is equal to 0. yes or no everybody? Yes, sir. है ना. अब c2 इज इक्वल टू 0 हो सकता है कि नहीं, बताओ. चलो, c2 0 होगा, नहीं होगा. क्यों? क्योंकि c1 तो ऑलरेडी 0 करके बैठे हैं हम. अगर c2 को भी 0 कर दिया तो ये मेरा फर्स्ट ब्रैकेट जो है वो 0 हो जाएगा. सो u अगेन 0 हो जाएगा. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. ओके, अब ये तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है क्योंकि ये मेरा t of t है तो वो 0 हो गया तो अगेन u of xt 0 हो जाएगा. सो वी हैव ओनली sin pl is equal to 0. अंडरस्टैंड? स्टूडेंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. So Yes, sir. sin pl is equal to क्या आ जाएगा, यहाँ पे sin कब 0 होता है, n पाई के लिए और n बिलोंग्स टू n. ओके, 0 नहीं आएगा, 1 2 3 4 ऐसे करके बिलोंग्स टू n. सो यहाँ पे दोनों साइड पे आप साइन को रिमूव करते हो तो pl इज इक्वल टू n पाई मिलेगा. सो योर p इज इक्वल टू n पाई बाय l हो जाएगा. सो मुझे p मिल गया सेकंड कंडीशन से. ओके, सो अब इक्वेशन 1 को फिर से लिखो तो. सो u of xt इज इक्वल टू क्या था इक्वेशन, यस, इक्वेशन 1 मेरा था c2. तो c2 को एज इट इज रखना पड़ेगा. c2 sin p की जगह पे मेरा हो गया n पाई x बाय l c3 e raised to minus c square p square t. ओके, अब यहाँ पे c2 c3 को मर्ज कर देता हूँ. दैट मींस c2 c3 sin n pi x by l e raised to minus c square p square t. ओके, u of xt. अब ये तो n मेरा बिलोंग्स टू n है तो आई कैन राइट डाउन इन दी समेशन ऑल्सो. सो समेशन यहाँ पे n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी और ये जो c2 c3 कांस्टेंट है उसको मैं नेम दे रहा हूँ an. सो an इंटू साइन n pi x by l into e raised to minus c square p square t, where n is equal to c2 c3. okay,
अब ये मेरा मिल गया नया सॉल्यूशन, लास्ट जो भी दो कंडीशन से मुझे मिला, इसलिए उसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। अब थर्ड कंडीशन बाकी है हमारे पास, थर्ड लाइफ लाइन है। व्हाट इज द थर्ड कंडीशन? थर्ड कंडीशन इज u ऑफ x0 इज इक्वल टू f ऑफ x, तो उसका यूज करूंगा। सो हियर u ऑफ x0 इज इक्वल टू f ऑफ x, तो उसको यहाँ पे रिप्लेस करूँ इक्वेशन नंबर 2 में। सो u ऑफ x0 इज इक्वल टू, मेरे पास होगा समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an साइन n पाई x बाय l इंटू ई रेस टू 0, क्योंकि t की जगह पे मुझे 0 करना था। सो आई हैव ओनली समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an साइन n pi x by l, because e raised to 0 means 1. So this is your f of x, आपको f of x के लिए बोला है. So what is this again, which is Sine half range. yes, half range sine series. Yes or no everybody? So मुझे an कैसे मिल जाएगा? So an मुझे मिल जाएगा 2 by l 0 to l, है ना, f of x into sin n pi x by l dx. So मुझे an मिल गया, तो ये मेरा जो सॉल्यूशन था इक्वेशन 2 में, उसमें मैं an ये सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो दैट इज माय फाइनल सॉल्यूशन. ओके, सो इक्वेशन 2 इज required solution of heat equation. Understand everybody? Student, do you understand? Yes. Okay, now we go for the example. देखो ये पूरा जो मैंने एक्सप्लेन किया वो पूरा यहाँ पे लिखा ही हुआ है, so you can go through it, है ना, which is half range sine series. देखो लास्ट में ही आ गया, so आप उस तरीके से भी समझ सकते हो, और कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो डिस्कस विथ मी. ओके, नेक्स्ट देखो, अब ये जो एग्जाम्पल होंगे हीट के, उसमें रोड आएगा. वर्ड क्या होगा? रोड. उससे आपको पता चल जाएगा कि ये किसका एग्जाम्पल है, हीट इक्वेशन का, क्योंकि रोड में ही हीट जनरेट ज्यादा कर सकते हैं हम, इसलिए यहाँ पे आयन रोड हो सकता है. ओके, रोड वर्ड दिखाई दे तो आपको समझना है कि दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द हीट इक्वेशन. अंडरस्टैंड स्टूडेंट? अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके, चलो स्टेटमेंट एक बार पढ़ते हैं. सो अ रोड ऑफ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज इट्स एंड ए एंड बी. मीन्स ये मेरा रोड है, ए एंड बी उसके टर्मिनल एंड इनिशियल पॉइंट है. ओके, सो यहाँ पे ये जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है. ओके, अब कैप्ट है 20 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स ए पे मेरा 20 डिग्री सेल्सियस है, बी पे मेरा 80 डिग्री सेल्सियस से रिस्पेक्टिवली, अनटिल स्टडी स्टेट कंडीशन प्रिवेंट. मीन जब तक स्टडी स्टेट कंडीशन नहीं आता है तब तक इस तरीके की सिचुएशन है. सो द टेम्परेचर एट ईच एंड इज सडनली रिड्यूस टू 0 डिग्री. दैट मीन्स वो कहाँ चला जाता है? सडनली रिड्यूस टू 0, है ना. क्लियर एवरीबडी? अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे स्टडी स्टेट कंडीशन जो है वो मेरी यहाँ पे दिया है मुझे 0. ओके, स्टडी स्टेट मीन्स उसका डेल यू बाई डेल टी इज इक्वल टू 0. ओके, इसका मीनिंग हो जाएगा डेल यू बाई डेल टी इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे वो तुरंत 0 की ओर चला जाता है. ओके, फाइंड द रिजल्टिंग टेम्परेचर यू ऑफ एक्स टी. मीन्स आपको ये डेटा के साथ यू ऑफ एक्स टी क्या होगा वो फाइंड करके देना है. So again the temperature u of xt is given by the heat equation. मैंने उसको लिख दिया. उसकी दो कंडीशन, कौन सी कंडीशन थी? u of 0t is equal to 0 and u of lt. l is equal to कितना है मेरा? लेंथ कितना है रोड का? 30, है ना? yes or no? Yes, sir. सो ये 30 डिग्री हुआ, दैट मीन सॉरी 30 सेंटीमीटर है, इसलिए L की जगह पे 30 आ जाएगा. सो U ऑफ 30t इज इक्वल टू 0. तो ये दो कंडीशन तो हो गई. अब थर्ड कंडीशन मेरी होती है U ऑफ x0 इज इक्वल टू f ऑफ x.
अब इसके लिए थोड़ा आपको ये समझना पड़ेगा। तो नंबर 1 मुझे दिया है वो है स्टडी स्टेट कंडीशन। स्टडी स्टेट कंडीशन मीन्स जब उसका डिफरेंशिएशन, स्टडी स्टेट कंडीशन मीन्स उसका कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है, मीन्स इट इज स्टेबल, दैट मीन्स डेल यू बाय डेल टी इज इक्वल टू 0, है ना, वो स्टेबल है, नो वेरिएशन, मीन्स उसमें रेट ऑफ चेंज नहीं है, दैट मीन्स डेल यू बाय डेल टी इज इक्वल टू 0। ओके, अब इक्वेशन 1 में अगर आप डेल यू बाय डेल टी इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करते हो तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा। सो इट गिव्स मी डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यस और नो? यस सर। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो वो आपको इस तरीके से सॉल्यूशन देगा, दैट मीन्स u इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इसकी इंटीग्रेशन करो तो आपको ये मिलेगा, u इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ओके, अंडरस्टैंड एवरीबडी? Yes, sir. और ये जो मिला ना, दैट इज माई u ऑफ, देखो u ऑफ x0 आया, ये कहीं पर भी t नहीं है, तो u ऑफ x0 मिला। अब जो भी डेटा है उससे मैं a एंड b फाइंड कर दूंगा, दैट्स ऑल, खत्म बात। तो यहाँ पे फर्स्ट डेटा दिया है कि पॉइंट a पे मीन्स जब x इज इक्वल टू 0 है तब 20 डिग्री सेल्सियस है, दैट मीन्स u मेरा 20 है, सो x इज इक्वल टू 0 पे u इज इक्वल टू 20। ओके, सो यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट करेंगे इसमें कि 0 पे 20, सो u20 इज इक्वल टू 0 प्लस b, तो b मेरा कितना मिल जाएगा, 20 मिल गया। इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करना है फर्स्ट a के लिए, अंडरस्टैंड स्टूडेंट? Yes, sir. यस सर। यस सर। बी के लिए मुझे क्या दिया था कि बी मेरा 30 सेंटीमीटर वो लेंथ है एंड यहाँ पे 80 डिग्री सेल्सियस है, तो जब x इज इक्वल टू 30 तब आपका u ऑफ एक्स टी 80 ऐसे लेना है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट में x इज इक्वल टू 30 देन u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू 80, सो इसमें सब्सटीट्यूट करो अगेन, सो 80 इज इक्वल टू b तो मेरे पास 20 था ही, तो a इंटू 30 प्लस 20, सो यहाँ पे आपको मिलेगा 30a इज इक्वल टू 60, क्योंकि 20 इसमें से सब्सट्रैक्ट होगा, सो a इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 60 बाई 30, दैट इज 2। ओके, अंडरस्टैंड? यस सर। सो मेरा u ऑफ x0 देखो, अब u ऑफ x0 क्या मिला, सो a की जगह पे मुझे 2 एंड b की जगह पे 20, सो 2x प्लस 20, सो 2x प्लस 10 दैट इज योर u ऑफ x0। कभी कभी एग्जाम्पल में दे देंगे और कभी नहीं दिया है तो इस हिसाब से आपको डिराइव करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मेरे पास 3 कंडीशन आया था, एक तो u ऑफ 0t इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू u ऑफ 30t, है ना, एंड जो u थर्ड कंडीशन था u ऑफ x0 इज इक्वल टू f ऑफ x, वो मेरा हो गया 2x प्लस 10। अब उसका सॉल्यूशन क्या था वो सोचो, चलो हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या था वो हमने अभी लिखा है, इक्वेशन नंबर 2 जो है वो सॉल्यूशन है कि नहीं, यस और नो? Yes, sir. अब इसमें से मुझे फाइंड करना सिर्फ ए एन है और ए एन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है, तो उससे हम ए एन फाइंड कर देंगे। देखो यहाँ नेक्स्ट में द सॉल्यूशन ऑफ द हीट इक्वेशन इज गिवन बाय दिस वन, यहाँ पे बी एन यूज किया है हमने, ए एन यूज किया है, सो बी एन साइन एन पाई एक्स बाई 30 e रेज टू माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 30 स्क्वायर, दैट मीन्स 900 इंटू टी, क्योंकि हमारा एल 30 है, सो बी एन इज इक्वल टू हमारे में ए एन होगा, ओके, ए एन इज इक्वल टू 2 बाई एल 0 टू एल एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स। अब 2 बाई एल, एल मीन्स मेरा 30 है, सो 2 बाई 30 यहाँ पे ऐसा आएगा 2 बाई 30 इंटू 0 टू 30, अब एफ ऑफ एक्स मेरा है 2x प्लस 10, सो 2x प्लस 10 इंटू साइन यहाँ पे n पाई x बाई 30 dx। ओके, तो इसको अब सॉल्व करना है, सो 2 इंटू 2 4 ओके, 4 बाई 30 0 टू 30 x प्लस 10 साइन n पाई x बाई 30 dx। अब इसके लिए u v रूल अप्लाई करें तो x प्लस 10 एज इट इज, साइन का माइनस कॉस और पूरा कांस्टेंट डिवाइड में माइनस x का 1 10 का 0, सो 1 इंटू माइनस साइन n पाई x बाई 30 डिवाइड बाई n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 30 स्क्वायर, दैट मीन्स 900 एंड 0 टू 30। अब जैसे ही 30 रिप्लेस करेंगे तो साइन में क्या होगा, देखो n पाई 30 बाई 30, सो
कैंसिल होके साइन एन पाई मिलेगा, यस और नो? Yes, sir. सो साइन एन पाई 0 और 0 रखेंगे तो भी 0, तो इसका डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम 30 और 0 रखेंगे फर्स्ट टर्म में। सो यहाँ पे 30 प्लस 10 40 हो जाएगा और इसको उल्टा करना पड़ेगा, दैट मीन्स 30 डिवाइड बाय एन पाई माइनस cos 30 30 कैंसिल आउट, सो cos n पाई माइनस और यहाँ पे 0 प्लस 10, सो 10 इसको उल्टा किया, दैट मीन्स 30 बाय एन पाई माइनस कॉस 0, क्योंकि x की जगह पे 0 रखना था 0। सो यहाँ पे 40, यहाँ पे ये पूरा कॉमन ले लिया, सो 4 डिवाइड बाय 30 30 डिवाइड बाय एन पाई, यहाँ पे 40 इंटू कॉस एन पाई मीन्स -1/n, ओके। और यहाँ पे एक -1 था, यहाँ पे ऐसा आ रहा है देखो -1 एंड -1/n, तो दोनों को मर्ज करेंगे तो -1/n+1 आएगा, यस और नो? Yes, sir. ये माइनस Yes, sir. माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस 10 इंटू ये 30 बाय एन पाई तो ऑलरेडी बाहर ले लिया है, cos 0 मीन्स 1, सो 10 इंटू 1। अब यहाँ पे 40, ये 30 30 कैंसिल हो गया और यहाँ से 10 मैंने कॉमन लिया, सो 10 इंटू 4 40 डिवाइड बाय एन पाई, यहाँ पे 4 बचा -1/n+1 +1। अब ये जो bn की वैल्यू हमारे में an, सो bn की वैल्यू जो मिली वो इक्वेशन नंबर 3 में रिप्लेस करना है, दैट इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सो यू हैव xt इज इक्वल टू 40 अपॉन पाई समेशन n इक्वल टू 1 to infinity 4 -1/n+1 +1 divided by n sin n pi x by 30 e raised to minus n square pi square c square upon 900 into c, which is required solution for the given data. Understand everybody? Yes, sir. Yes, sir. ओके और ये सिमिलर एग्जांपल है, वो आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, सो देख लेना एक बार, क्योंकि सॉल्व होगा उसी में से ज्यादा पूछा जाएगा। ओके और ये लाप्लास इक्वेशन सेम टू सेम वो भी आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, एक बार देख लेना, क्योंकि लाप्लास इक्वेशन का ये इक्वेशन है del² u by del x² plus del² u by del y² is equal to 0, सेम प्रोसीजर। ओके ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, तो एक बार देख लेना, है ना। और सेम टू सेम है, उसमें कुछ नया नहीं है, जो हमने फर्स्ट एंड सेकंड में किया ना उसका कॉम्बो है इसमें, बस दूसरा कुछ नहीं है। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? इसका कोई एग्जांपल नहीं है, देखो सिर्फ उसका सॉल्यूशन है, इसका एग्जांपल नहीं है। लेकिन उसके लिए अगर पूछा जाएगा, मैक्सिमम पूछा जाता है, तो उसका इक्वेशन पे ध्यान देना। इक्वेशन के लिए एमसीक्यू पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाप्लास इक्वेशन, ऐसा करके कभी कभी पूछा जाता है। और इसको एक बार देख भी लेना, अगर गलती से पूछ लिया एक्सटर्नल ने तो आपको पता होना चाहिए पूरा सॉल्यूशन। ओके अंडरस्टैंड? Yes, sir. Okay. Now, in next class, we discuss about the application of ordinary differential equation by using Laplace transform. Okay, ये फूरियर सीरीज वाला हमारा कंप्लीट हो गया। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में वेडनेसडे। ओके तो वो भी सिंपल है, उसमें इतना ज्यादा नहीं है, देखो यहाँ पे बहुत सिंपल है, उसमें कुछ ही नहीं। जैसे हमने एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म किया था ना, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था कि नहीं एवरीबॉडी? लास्ट टॉपिक था ना हमारा, Yes, sir. है ना। उसी तरीके से इसमें सिर्फ आपको इस तरीके से स्टेटमेंट दिया होगा, तो स्टेटमेंट के थ्रू में आपको उसको सॉल्व करना है। सो वी विल डिस्कस इट इन अवर नेक्स्ट क्लास ऑन वेडनेसडे। इसमें आई थिंक 2 एग्जाम्पल ही करना है, फिर हमारा सिलेबस कंप्लीट। यस 2 एग्जाम्पल है, ये तो होमवर्क में आपका। सो 2 एग्जाम्पल कंप्लीट करके हमारा सिलेबस कंप्लीट। ओके एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes. Okay, so is there any doubt, any question in today's